امریکہ کے شہر لاس ویگس میں UFC کے تحت تاریخ ساز MMA فائٹ لڑی گئی، جس میں روسی مسلمان مارشل آرٹسٹ خبیب نورماگومدوف اور آئرش مارشل آرٹسٹ کونر میگریگر مد مقابل تھے۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا مقابلہ تھا۔ کونر میگریگر کو دنیا کا خطرناک ترین مارشل آرٹسٹ اور ناقابل شکست تصور کیا جاتا ہے، لیکن جتنا اچھا وہ فائٹر ہے اتنا ہی شرپسند اور گالن گلوچ کرنے والا شخص ہے۔ میگریگر کی جانب سے مسلسل خبیب کے مذہب اسلام، خاندان اور ذات کو لے کر حقارت امیز بیانات آ رہے تھے۔ ایک پریس کانفرنس میں میگریگر نے خبیب کو شراب کی بوتل دکھا کر کہا کہ یہ لو پیو، جس پر خبیب نے کہا کہ ہم مسلمان شراب نہیں پیتے۔ اس پر خبیب کا دنیا بھر میں مذاق اڑایا گیا۔ میگریگر طاقت کے نشے میں چور تھا اور خبیب کو کہہ رہا تھا کہ تم میرے سامنے چونٹی سے زیادہ حقیر ہو اور اس فائٹ کے بعد اپنی ہڈیاں سلامت لے کر واپس نہیں جاؤ گے، مگر اس کے جواب میں خبیب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ الحمدللہ میرے ساتھ میرا اللہ ہی کافی ہے۔ ان تمام بیانات کی ویڈیوز آج بھی یوٹیوب پر موجود ہیں اور بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ بالآخر اس تاریخ ساز مقابلے کا آغاز ہوا۔ خبیب نے بڑی تگ و دو اور جدوجہد کے بعد میگریگر کو ناک آؤٹ کر دیا، مگر پھر پرسکون اور اطمینان میں رہنے والے خبیب نے مقابلے کے اختتام پر ایک ایسی حرکت کی کہ وہ کیج سے باہر نکلے اور میگریگر اور ان کے ساتھیوں پر پل پڑے۔ یہ دنگا فساد اتنا شدید تھا کہ MMA کی انتظامیہ نے خبیب کو پہلے چیمپئنز بیلٹ دینے تک سے انکار کر دیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ خبیب جو مقابلے سے پہلے نہایت پرسکون تھے اور ہر بات کے جواب میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وہ مقابلے کے اختتام پر آپے سے باہر ہو گئے اور اپنے مخالفین اور اس کے ساتھیوں پر اٹیک کر دیا؟ اس بات کا جواب آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم ضرور دیں گے، مگر اس سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز باقاعدگی سے مل رہیں۔ خواتین حضرات، جب یہ کانٹے دار مقابلہ شروع ہوا تو لاکھوں فینس کے دل کی دھڑکنیں رک سی گئی تھیں۔ تمام مسلم دنیا کی نظریں خبیب پر مرکوز تھیں، کیونکہ اسلام کا مذاق اڑانے کے بعد یہ مقابلہ صرف کھیل سے کہیں آگے بڑھ چکا تھا اور دو نظریات، دو مذاہب کی جنگ اختیار کر چکا تھا۔ یہاں جو مارشل آرٹس فائٹ سے ناواقف ہیں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ یہ عام باکسنگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں ککنگ، پنچنگ، فری سٹائل ریسلنگ اور کچھ اسپیشل قسم کی مووز اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی فائٹرز کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایسے میچز بھی تاریخ میں ہوئے ہیں جن میں فائٹرز کی باقاعدہ موت واقع ہو گئی۔ اس لیے اس کھیل کو دنیا کا خطرناک ترین گیم قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا تو ساری دنیا حیران رہ گئی جب ناقابل شکست اور خطرناک ترین سمجھے جانے والے کونر میگریگر کو خبیب نے بری طرح سے پیٹا اور چوتھے راؤنڈ میں ہی میگریگر کی گردن ایسی دبوچی کہ اس نے ٹیپ آؤٹ کر کے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ یہ مارشل آرٹس کی تاریخ کی ایک عظیم فتح تھی، کیونکہ مسلم دنیا کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مسلمان فائٹر نے ایک ناقابل تسخیر دشمن کا غرور خاک میں ملا کر چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ مگر پھر وہ حادثہ، وہ واقعہ پیش آیا جس پر خبیب کو پوری دنیا نے تنقید کا نشانہ تو بنایا، مگر اس کی اصل وجہ کو پوری دنیا کے میڈیا نے چھپا دیا۔ مقابلہ جیتنے کے بعد خبیب کو جب پھر سے میگریگر کے کوچ کی جانب سے اسلام کے اوپر چند نازیبا الفاظ سے پکارا گیا تو اس بار وہ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ وہ اکیلا شیر میدان سے کود کر ہزاروں کے مجمع میں پہنچا اور میگریگر کے ساتھیوں کو اسلام کو گالی دینے پر پیٹ ڈالا۔ اس ہنگامے کی وجہ سے جو بعد میں ایک فساد کی صورت اختیار کر گیا، فائٹ کی انتظامیہ نے خبیب کو چیمپئنز بیلٹ دینے سے اس وقت تو انکار کر دیا، تاہم بعد میں انہیں یہ بیلٹ دے دی گئی۔ UFC کے مسلمان سٹار فری سٹائل باکسر خبیب نے باقاعدہ طور پر اس ہنگامے پر معذرت کی اور اس کی اصل وجہ دنیا بتائی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بات جب تک ان کی ذات کی حد تک تھی انہوں نے پورے صبر کا مظاہرہ کیا، اور اس بات کی گواہ یوٹیوب پر موجود ویڈیوز بھی ہیں کہ مقابلے سے قبل پریس کانفرنس میں جب میگریگر خبیب کو گالیاں دے رہا تھا تو وہ بڑے پرسکون انداز میں بیٹھے رہے اور ہر بات کے جواب میں الحمدللہ کہتے رہے۔ خبیب کا کہنا تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات تو کر رہے ہیں کہ میں نے رنگ کے جنگلے سے چھلانگ لگائی اور حریف ٹیم کے ساتھ مار پیٹ کی، لیکن کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ انہوں نے میرے دین اسلام، میرے ملک اور میرے والد کے بارے میں نازیبا کلمات کہے۔
इसी बात पर मैंने इश्तियाल में आकर रिंग के जंगले से बाहर छलांग लगाई और हरीफ टीम के ओहदेदारों पर मुक्के और लातें बरसा दी। ख्वातीन हज़रात, खबीब ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रीजन बयान की कि किस वजह से उन्होंने ये हंगामा और फसाद किया, तो उनकी दीन इस्लाम से मोहब्बत देखकर खबीब पूरी दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों की आंखों का तारा बन चुके हैं और इस वक्त UFC की तारीख में सबसे बड़े सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर चुके हैं। दुनिया भर से मुसलमान खबीब को अपनी हिमायत और सपोर्ट का यकीन दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसी गैरत ईमानी रखने वाले मुसलमान फाइटर ही हमारे असल हीरो हैं। दोस्तों, खबीब के दिल में इस्लाम से ये मोहब्बत शुरू ही से डाली गई थी। लाइट वेट क्लास के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जो ईगल के नाम से मशहूर हैं, 30 साला खबीब इस खेल के पहले मुसलमान वर्ल्ड चैंपियन हैं। उनका ताल्लुक इमाम शामिल की सरजमीन दागिस्तान से है, जो रूस की जेर इंतजाम एक ऐसी मुस्लिम रियासत है जो लंबे अरसे से रूसी कब्जे के मुकाबले में जिहाद करती चली आई है। खबीब बहादुरों की उस सरजमीन के सपूत हैं जहां बचपन ही से बच्चों को कुश्ती और कराटे से खास शगफ होता है। खबीब को भी मार्शल आर्ट से मोहब्बत अपने वालिद ही से विरसे में मिली है, जिन्होंने इब्तदा ही से खुद उसे मार्शल आर्ट की तरबियत देना शुरू की और खबीब अपने बचपन में रीच के साथ कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए जोर आजमाई किया करते थे। खबीब आज तक वो वाहिद MMA प्लेयर हैं जो ना सिर्फ 26 फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त हैं, बल्कि इससे बढ़कर कोई भी हरीफ खबीब को आज तक किसी भी मुकाबले के एक राउंड में भी शिकस्त नहीं दे पाया। खबीब के स्टाइल की खास बात उनकी कुश्ती में खसूसी महारत है। मुकाबला शुरू होते ही खबीब चीते की फुर्ती से अपने हरीफ पर टूट पड़ते हैं और उनकी कुश्ती के दाव पेच का हरीफ के पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन इस बार खबीब का मुकाबला एक तेज तर्रार और खतरनाक तरीन खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर के साथ था, जो अब तक 24 मुकाबलों में से सिर्फ 3 में शिकस्त का सामना कर चुके हैं। कॉनर एक दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं, जो मुकाबले से कबल अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की तरह अपने हरीफ को दिलचस्प चुटकुलों और चर्ब जुबानी से नफसियाती मार मारते हैं। उनके दिल में मुकाबले से पहले खौफ और बेयकीनी पैदा करते हैं, या फिर हरीफ उनकी जुबान के हमलों से इस कदर जिच हो जाता है कि नफरत में मुकाबले के दौरान गलतियां कर जाता है, जिससे फायदा उठाने में कॉनर कभी नहीं चूकते। कॉनर मैकग्रेगर और खबीब की मैच से पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों की शख्सियात का मुख्तलिफ रंग दिखाती रही। एक तरफ मुतहम्मल मजाज खबीर अपनी मशहूर कुन मुस्कुराहट के साथ मौजूद था और खबीब की आंखें उसके एतमाद और हरीफ से बेखौफी की गम्मास थीं, जबकि दूसरी तरफ अपने रवायती बड़बोलेपन के साथ कॉनर खबीब को नफसियाती मार मारने के लिए ऊट पटांग जुमले उछालता रहा। मुकाबले से पहले की खास बात कॉनर की टीम के ट्रेनिंग मेंबर और उसके गहरे दोस्त की खबीब से किसी बात पर जुबानी झड़प थी, जिस पर कॉनर शदीद सीखपा हुआ और इसे अपनी बेइज्जती समझा। कॉनर मैकग्रेगर ने अपने बॉडी गार्ड्स के साथ अमेरिका पहुंचकर खबीब की बस पर हमला किया, जिस पर कॉनर को कोर्ट में मामूली सजा का भी सामना करना पड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉनर बस पर हमले के दौरान खबीब को बाहर ना निकलने पर बुज़दिली के ताने देता रहा, जबकि खबीब जवाबन सिर्फ ये कहता रहा कि अगर तुम्हें मुझसे कोई मसला था तो मुझे कहते, मैं अकेला तुम्हारे पास आता। बुज़दिल तो तुम हो जो 40 बॉडी गार्ड्स के साथ मेरी बस पर चढ़ दौड़े। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉनर मैकग्रेगर अपने साथ स्पॉन्सर करने वाली शराब की बोतल भी लाया और उसके पैक बनाकर खुद भी पीता रहा और खबीब को गुस्सा दिलाने के लिए उसे भी शराब पेश की, जिसे खबीब ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं और मेरा दीन मुझे नशा करने से मना करता है। आज मगरबी दुनिया मुकाबले के बाद खबीब के हमले को तनकीद का निशाना तो बना रही है, मगर मुकाबले से कबल कॉनर मैकग्रेगर जो नफरत अंगेज जुमले बोलता रहा और खबीब के दीने इस्लाम के ऊपर तंज के निस्तर बरसाता रहा, उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और खबीब के किरदार की अजमत इसी बात से जाहिर होती है कि जब तक कॉनर मैकग्रेगर उसकी जात पर हमले करता रहा, वो खामोश बैठा मुस्कुराता रहा और उस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिंग में देने का इंदिया जाहिर करता रहा। मगर जूं ही कॉनर मैकग्रेगर ने तमाम हदें क्रॉस करते हुए फाइट के बाद खबीब के दीने इस्लाम पर बात की और नफरत अंगेज जुमले कसे और उसके वालिद के बारे में नाजेबा कलमात अदा किए, तो खबीब अपने गुस्से पर काबू न रख सका। उसके गैरत ईमानी का तकाजा यही था कि वो अपनी जगह से उठता और दीने इस्लाम के खिलाफ बात करने वाले की जुबान खींच लेता। और खबीब ने किया भी ऐसा कि बड़बोले कॉनर को न सिर्फ रिंग में शिकस्त दी, बल्कि जब उसके मजहब के ऊपर बात की गई तो वो अकेला शेर की तरह उन 40-50 लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया और उन पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मुसलमान फाइटर होने की वजह से खबीब को पहले ही दुनिया
भर में मुसलमान अपना आइडियल तस्वुर करते थे और इस मुकाबले के दौरान भी खबीब को मुसलमानों की अनडिवाइडेड सपोर्ट हासिल थी, मगर फाइट के बाद होने वाली लड़ाई की वजह जानकर खबीब को मुसलमानों में मजीद शोहरत मिली है और उसने बिलाशुबा करोड़ों और दिलों में भी घर कर लिया है। बहरहाल मैग्रेगर ने जो गुरूर किया उसका सर एक मुसलमान जांबाज ने तोड़ कर रख दिया और तमाम दुनिया को ये बता दिया कि कोई भी मुसलमान अपनी जात पर किए गए हमले को तो बर्दाश्त कर सकता है, मगर उसके दीन इस्लाम के खिलाफ कोई बात की जाए तो कितना महंगा पड़ सकता है। इस तारीख साज विक्ट्री पर बॉक्सिंग के अजीम स्टार मोहम्मद अली मरहूम के बाद एक और मुसलमान स्टार खबीब मार्शल आर्ट्स के मैदान में उभर आया है। एक मुसलमान की हैसियत से हम सब की दुआएं खबीब के हमेशा साथ हैं। अल्लाह खबीब को सदा कामयाबियों से नवाजे और वो अपनी शोहरत के जरिए मोहम्मद अली की तरह दीन की दावत दुनिया को पहुंचाने का बाइस बने और अपनी अच्छी आदत और शख्सियत की वजह से इस्लाम का बेहतरीन सफीर साबित हो। तो दोस्तों, ये थी मैग्रेगर और खबीब के दरमियान मशहूर ज़माना होने वाली फाइट का अहवाल, जिसमें हमने आपको ये बताया कि कैसे दुनिया भर में खबीब को फाइट के बाद होने वाली लड़ाई की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि खबीब ने स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं किया, मगर दुनिया ये बात भूल गई कि आखिर उसकी वजह क्या थी कि पुरसुकून और इत्मीनान में रहने वाला शख्स कैसे अचानक इतना भड़क उठा कि मुखालिफ टीम पर हमला कर दिया। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपने कॉनर मैग्रेगर और खबीब के दरमियान होने वाला ये मैच देखा था, और अगर नहीं भी देखा था तो इस वीडियो के बाद आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, और क्या खबीब के इस एक्ट को आप दुरुस्त तस्वुर करते हैं? क्या आप खबीब की हिमायत करते हैं? क्या उसने दीन इस्लाम के खिलाफ नाजेबा कलिमात कहने वाले को सबक सिखाकर बेहतरीन इकदाम किया है, या वो हमेशा की तरह पुरसुकून रहता और इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिंग में अपने मुक्कों की सूरत में देता? आपके जवाबात का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। यहीं पर अपनी वीडियो का इख्तिताम भी करेंगे, मगर जाते जाते आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड बटन को प्रेस करके और बेल आइकॉन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। बहुत जल्द किसी नई इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।